जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सारी संगत पर ऐसे ही मेहर बरसाते रहे। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। गुरुजी के आशीर्वाद और संगत जी के विश्वास से आज चैनल के माध्यम से गुरु परिवार 5000 से भी बड़ा हो गया है। संगत का जुड़ना ना सिर्फ भारत के कोने कोने से बल्कि कनाडा, अमेरिका, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल और दुनिया के अनेकों देशों से जारी है। सारी संगत को जय गुरु जी। अगर आप अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए ईमेल पर भेजें। आप अपना सत्संग वीडियो में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप से भी भेज सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। आप जानते ही हैं सत्संग एक ऐसा माध्यम है जिससे सत्संग करने वाले को और सत्संग सुनने वाले दोनों को आशीर्वाद मिलता है। अपना पहले सत्संग शुरू करते हुए संगत जी से अनुरोध है कि अपने शहर का नाम जरूर लिखें ताकि गुरु परिवार कहाँ से जुड़े हैं पता लग सके। शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। शुरू करते हैं आज के हमारे पहले प्यारे से सत्संग से। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरु महाराज जी अनंतम अनंतम शुक्राना है। कोटि कोटि शुक्राना है। गुरु महाराज जी ने सानू अपनी संगत बनाया, सानू अपना हथ फड़िया। गुरु महाराज जी ने, गुरु महाराज जी ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਲਾਇਕ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਹੱਥ, ਵੈਸੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਹ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਹੈਲਥ ਬਖਸ਼ਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਟि ਕੋटि ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਤਸੰਗਾਂ ਦਾ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਤਸੰਗਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਮਿਰੈਕਲਸ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਤਿਤਲੀ ਰੂਪ 'ਚ, ਕਦੇ ਕਬੂਤਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦੇਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਦਾ, ਹਰ ਮੈਸੇਜ ਦਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਵੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੀ ਉਹ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਸੇਜਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੂੰ ਪੁੱਤ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵਧਾ, 100 ਕਦਮ ਮੈਂ ਵਧਾਊਂਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੀ ਕਿ ਚਲੋ ਜੇ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪੇ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਟि ਕੋਟि ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਓਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਜੋੜਿਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਸ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਜਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ
ਆਪਣੇ ਖਰਾਬ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਬਸ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਸ ਹੁਣ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਉਹ 'ਚ ਸੈਂਸਿਸ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦ ਦੇ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਿਟੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਘੁੰਮਣ ਜਾਣ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਪਿਕਚਰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਖਵਾਹਿਸ਼ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਾਫੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਨੋਟੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਸੰਗਤ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਗਲਤੀਆਂ ਮਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨੱਕ ਤੇ ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਗਲਾ ਵੀ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਦਿਲ ਦੇ ਹਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਹਰ ਸਾਂਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਕੋਈ ਗੈਸਟ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਘਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਣੀ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਗੈਸਟ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਤੱਕ ਬੈਠਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖੁਣਾ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਰਤਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸੁਬਾਹ ਜਦ ਨੈਣੀ ਆਏਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਚੱਕੇਗੀ ਅਤੇ ਆਪੇ ਧੋ ਧੂ ਕੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਦੇਗੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਉਹ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਣ। ਬਟ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦ ਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਇਹ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਾਂਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੱਠੇ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਲਿਵਿੰਗ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਖੁਦ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਐਟਲੀਸਟ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸੋ ਗਈ ਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੁਛ ਖਾਇਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਭਾਂਡਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿਆ, ਬਟ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰ ਗੰਦਾ ਨਾ ਰੱਖਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਭ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੈ। ਸਭ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਬਟ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਬਟ ਮੈਂ ਨਾ ਅੱਜ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਂਟਿਟੀ ਉਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਮੇਰੀ, ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਛ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 100% ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੂਰਾ ਮੈਨੂੰ 100% ਦੇ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਤਾਂ ਕਰ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 100% ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਾਂ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਆ ਹੈ, ਬਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਦਿਲ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज जी। जय गुरु जी। संगत जी, ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਾਇਕ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਨਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ, ਸਿਰਫ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਬਟ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਬਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਾ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਮੇਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਹੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਸੀਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਕਰੋ, ਫਲਾਣਾ ਕਰੋ, ਟਿਮਗਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਜੋ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਦੇਖੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਬਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਦਿਲ ਨਾਲ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਔਰ ਦਿਲ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਦਿਲ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਹਰ ਸਾਂਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਓਨਾ ਘੱਟ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਤਾਂ ਅਪਰੰਪਾਰ ਨੇ, ਅਪਰੰਪਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਬਟ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਓਮ ਨਮः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਾਇਕ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਸਦਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਭ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁੜੀਏ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰਾ ਨਾ ਮੂਡ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਊਨ ਸੀਗਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡਿਨਰ ਲਈ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗੁੱਸਾ ਹੋ ਗਏ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੇ ਕੁਛ ਗਲਤ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ, ਔਰ
शायद कह ही ਦਿੱਤਾ, मैंने कुछ गलत कहता होना, बट मैंने अनजाने ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਹਾ, मैंने कुछ आई डिडंट मीन इट। बट गुरु महाराज जी संगत जी उन्होंने गुस्सा करना शुरू करता ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਗਲਤ ਵਰਡਿੰਗ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ मूड बहुत ज़्यादा हो गया, डाउन हो गया। मैंने उस वक्त तक कुछ भी नहीं किया ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, मैं बस अपना मंत्र जाप ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਮੂਡ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਫ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੂਡ ਆਫ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਸ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹ ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵਿੰਡੋ ਵਾਲਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਉੱਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਜਦ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ 777 ਦੀ ਕਾਰਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਜਾਵਾਂ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਮਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਦਾਸ ਜਿਹਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਘਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 777 ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਡ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਦਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਹਰ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦਾਸ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ, ਉਸਦੇ ਲਈ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਉਸਦੇ ਲਈ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲ ਕੇ ਬਸ ਆਪਣਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਾਈਮ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਹ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸਦੇ ਲਈ ਅਨੰਤਮ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟि ਕੋਟि ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਦਿਲ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ ਪਈ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 3 ਦਿਨ ਬੜੇ ਔਖੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੁੜੀਏ ਸੰਭਲ ਕੇ ਰਹੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੱਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈंने ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਹੈ ਜਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ ਕਾਪਰ ਦਾ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਤੇ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਖੀ ਗਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਹਲੇ ਮਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦ ਜਾਰ ਆਪਣੇ ਕਿਚਨ 'ਚ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਨਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਸੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਜਾਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਮੱਖੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਹਲੇ ਮਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਠੀਕ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੱਖੀ। ਤੇ ਮੈਨੇ ਨਾ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜਦ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਸ਼ਟ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਮੱਖੀ ਜਾਂ ਕਬੂਤਰ ਜਾਂ ਤਿਤਲੀ, ਐਵੇਂ ਮੈਨੇ ਬਹੁਤ ਸੁਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੱਲ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੱਖੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਸ਼ਟ ਕਟਵਾਏ ਨੇ, ਮੱਖੀ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਕੇ। ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੱਖੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਡਿਨਰ ਤੇ, ਮੈंने ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੱਖੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਲਈ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟि ਕੋਟि ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਦਿਲ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਕੰਨ ਫਾੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਦਿਲ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਗਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਦਿਲ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी कल फिर मिलांगे ਆਪਾਂ ਨਵੇਂ सत्संग ਨਾਲ। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं पहली बार शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। गुरु जी शुक्राना करा कर कहा करते हैं, तो मुझे लगा मुझे सत्संग करने कहा जा रहा है। संगत जी, मैं इस सत्संग की शुरुआत गुरु जी के पावन मंत्र से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ कर दीजिएगा गुरुजी और संगत जी। संगत जी, गुरु जी के बारे में सबसे पहली बार 2015 में एक सहेली के घर सत्संग में पता चला। इससे पहले गुरु जी का सत्संग कभी नहीं देखा या सुना था। उस दिन भी सत्संग में साक्षात गुरु दर्शन की उम्मीद से मैं गई थी और बहुत कंफ्यूज होकर वापस आई थी कि ऐसा कैसा सत्संग जहाँ गुरु जी तो थे ही नहीं। संगत जी, उसके बाद मैं शायद 2021-22 में फेसबुक में श्री गुरु जी को हमने देखा पहली बार और मैंने हर पोस्ट को लाइक करना और मैसेज में शुक्राना लिखना शुरू किया। कुछ दिन के बाद वापस पता नहीं क्यों वो बंद हो गया। संगत जी, इस साल शुरू में 2024 में गुरु जी मुझे फिर से फेसबुक पे दिखने लगे। इस बार मुझे लगा शायद ये कोई मैसेज ही है कि मुझे गुरु जी से जुड़ने को कहा जा रहा है। फिर मैं फेसबुक मैसेजेस को रेगुलर पढ़ने लगी। मुझे लगा गुरुजी में ऐसा कुछ है जो मुझे अट्रैक्ट कर रहा है। एक दिन मेरी ननंद आंटी बोली कि वह दिल्ली बड़े मंदिर जाने वाली है। मैंने उनसे कहा, दीदी मुझे भी ले चलिएगा। संगत जी, उनके साथ जाना नहीं हो पाया क्योंकि उनके डेट्स पर मैं फ्री नहीं थी। पर मेरे मन में गुरुजी के दर्शन की इच्छा बहुत ज्यादा होने लगी। संगत जी, मुझे गुरुजी के बारे में कुछ नहीं पता था, न ही बड़े मंदिर के बारे में। मैंने अपनी सास आंटी जी से कहा कि इस बार दिल्ली जाऊंगी तो बड़े मंदिर जरूर जाऊंगी। वह बोली, हम भी चलेंगे। दिल्ली जुलाई 2024 में 26 तारीख को जाना था। 26 से 27 को मेरा ऑफिशियल काम था और 28 को वापसी थी। पता नहीं था कैसे मंदिर जाना प्लान करती। संगत जी, शायद गुरु जी मेरे मन की बात सुन रहे थे। मेरे साथ जिनका ऑफिस का काम था उनका फोन आया कि आप 28 को ड्यूटी कर लेना, मैं 27 को कर लूंगी। संगत जी, मुझे 27 को फ्री दिन मिला तो मैंने अपनी सास आंटी जी से कहा कि चलो हम दोनों बड़े मंदिर चलते हैं। 27 को सुबह हम दोनों नहाकर तैयार होकर छतरपुर के लिए निकल गए। बड़े मंदिर पहुंचे तो पता चला मंदिर तो सिर्फ शाम को 5 बजे से खुलता है। हम दोनों बहुत निराश हुए। पता ही नहीं था कि मंदिर की टाइमिंग्स भी होते हैं। मैंने अपनी सास आंटी जी से कहा, हम लोग शाम को फिर से आएंगे। वो भी तैयार हो गई। शाम को फिर हम दोनों निकले। ट्रैफिक बहुत ज्यादा था और हमको बहुत ज्यादा टाइम लगा। संगत जी, लेकिन जैसे ही मंदिर पहुंचे तो मुझे लगा जो भी टाइम लगा वो वर्थ था। मंदिर में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बारिश का मौसम था लेकिन हम लोग बिना भीगे बिना लाइन में बहुत देर खड़े हुए मंदिर के अंदर तक पहुंच गए। चाय प्रसाद नहीं मिला क्योंकि हम अंदर जल्दी चले गए बिना वेट किए। मंदिर के अंदर 10 मिनट बैठे। संगत जी, गुरु जी चारों तरफ से शायद सिर्फ मुझे ही देख रहे हो ऐसा फील हो रहा था। वहां से लंगर हॉल गए। वहां हम बैठे नहीं क्योंकि हमें जल्दी वापस लौटना था, तो लंगर प्रसाद लेकर बाहर आ गए। घर पहुंचकर सास ससुर और 2 बच्चों के साथ मिलकर हम लोगों ने प्रसाद खाया। बाद में ननन आंटी को मैंने बताया कि बड़े मंदिर हो आए हैं, तो उन्होंने कहा, लंगर प्रसाद खाया था? तो हमने कहा, नहीं, हम लंगर प्रसाद खा नहीं पाए, हम साथ लेकर आए थे। तो उन्होंने कहा, लंगर प्रसाद बैठ के नहीं खाया तो सिर्फ मिठाई मिली समझो। ब्लेसिंग्स तो तब वहां मिलती है जब वहां बैठकर आपने प्रसाद खाया हो। मन बहुत दुखी हुआ। मैंने हर रोज गुरुजी से बात करना शुरू किया। दिन में कई बार सत्संग सुनती और हर रोज सुनती। ऐसा लगने लगा था जैसे कि गुरुजी मेरी जिंदगी में एक नई आशा लेकर आए हैं। संगत जी, मेरी जिंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव आए हैं। कई बार लगा कि क्यों जी रही हूँ। इतने कष्ट झेले हैं कि अब पीछे मुड़कर देखने में भी डर लगता है। मेरी पहली शादी बहुत ही तकलीफ में कटी। पहली शादी से मेरे 2 बेटे थे। बहुत मुश्किल से उस शादी से मैं निकल पाई और उन दोनों बच्चों ने भी मुझे बहुत कष्ट दिया। फिर मेरी दूसरी शादी हुई। मेरे अंकल जी मुझसे कभी भी प्रेम से नहीं रहे। उन्होंने मेरा ख्याल रखने का प्रयास जरूर किया लेकिन अपने माता पिता और अपने 2 बच्चों के आगे मुझे कभी भी इम्पोर्टेंस नहीं दिया। ससुराल में मुझे बहुत कष्ट दिए गए। इस शादी से 2 बच्चे, एक लड़का और एक लड़की भी हैं। ससुराल में पक्षपात बहुत ज्यादा होता रहा। मेरी कोई वैल्यू इस घर में नहीं रही। मैंने बहुत प्रयास किया कि सबको खुश रखूं, पर एक तरफा प्यार कभी खुशी नहीं देता। मैं पूरे दिल से अपने अंकल जी को प्यार करती थी, लेकिन उन्होंने मेरे साथ भी धोखा किया। वे बाहर अपनी इच्छाएं पूरी करते थे, बहुत ड्रिंक करते थे।
इसके अलावा मेरी बेटी भी मेरे साथ बहुत ज्यादा गलत काम करती थी। पूरा परिवार एक तरफ और मेरा बेटा और मैं एक तरफ, क्योंकि मेरा एक बेटा मेरे साथ रहता था और दूसरा बेटा कहीं और रहता था। दूसरे बेटे को परिवार ने अपनाया भी नहीं था। अब आप सोच लीजिए एक माँ के लिए कितनी ही दुखदायक हो सकता है कि दो बेटों को के होते हुए एक ही बेटे को साथ रख पाना, और उसके अलावा दूसरी शादी से जो दो बच्चे हैं उनको भी अपने साथ रख के अपना ही मान के चलना। गुरुजी, मैंने अपने बच्चों को, चारों बच्चों को एक ही नजर से पाला, बहुत प्रेम दिया, लेकिन मेरे सामने बहुत सारे चैलेंजेस थे जो मैंने झेली। मैं मेरी दूसरी शादी के कुछ साल बाद डिप्रेशन में चली गई थी। ना मेरे अंकल जी से, ना मेरे ससुराल वालों से, ना मेरे बच्चों से कोई खुशी थी। एक बहुत अच्छी काउंसलर की मदद से मैं डिप्रेशन से रिकवर जरूर हुई। उन्होंने बहुत पॉजिटिव बातें सिखाई। मैं एक बहुत सक्सेसफुल पोजीशन में काम करती थी। दूसरी शादी के बाद काम छोड़ा था, लेकिन अपने अंकल जी से बोल बोल के फिर से काम करने लगी थी। किसी को मेरे काम की परवाह या इज्जत कभी नहीं थी, पर मैंने अपने आप को बिजी रखने के लिए और नेगेटिविटी से दूर रहने के लिए काम किया। अपने कमाई से अपने दोनों लड़कों को पढ़ाया, उनकी एजुकेशन की जरूरतों को मैंने ध्यान रखा। मेरा बड़ा बेटा गलत संगत और गलत आदतों का शिकार है गुरुजी। मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ कि गुरुजी उस पे कृपा करे और उसे एक नई जिंदगी बख्शे। छोटा बेटा बहुत मेहनत कर रहा है, उसे भी गुरुजी ब्लेस करे, और दूसरी शादी से जो बेटा और बेटी है उनको मैंने पूरा सपोर्ट दिया है। इसके अलावा परिवार में उन दोनों बच्चों के लिए तो सब लोग खड़े होते हैं, तो उनको किसी चीज की कमी कभी नहीं। गुरुजी की कृपा से उनको हमेशा सही गाइडेंस मैंने दिया। एक नौकरी कर रहा है और एक कॉलेज में पढ़ रही है। संगत जी, मैं पूजा पाठ बहुत करती हूँ। ईश्वर पे विश्वास है मुझे। जिंदा रहने का सिर्फ यही कारण है कि भक्ति और भाव से मैंने ईश्वर के साथ अपना समय व्यतीत करना शुरू किया है। संगत जी, मेरे अंकल जी को पता है वह मेरे साथ बहुत गलत कर रहे हैं। मुझे और मेरे छोटे बेटे को अब थोड़ा बहुत सपोर्ट करने लगे हैं। उनका बिजनेस भी अच्छा चल रहा है। मैं अपने सास ससुर का बहुत ख्याल रखती हूँ। संगत जी, एक बार मेरे ससुर अंकल जी ने मेरी मम्मी आंटी जी को बेइज्जत किया था, और उसके बाद से वह अब मेरे घर कभी नहीं आती, जिस बात का बहुत दुख है। मेरे साथ इतनी ज्यादा नाइंसाफी करने के बावजूद मैंने मेरे सास ससुर अंकल आंटी का बहुत ध्यान रखा है और कभी भी उनके साथ कोई गलत नहीं किया है। मेरे अंकल जी को ये पता है, शायद इसीलिए वो मुझे ब्लेम तो नहीं करते। संगत जी, गुरु जी मुझ पे अपनी कृपा बनाए रखे। आज उन्होंने अगर मुझे चुना है तो कुछ सोचकर ही चुना होगा। संगत जी, कई सारे सवाल और कई सारे जवाब मुझे भी दूसरे सत्संग के द्वारा मिलते हैं। कई बार मुझे ये भी लगता है कि मैं ये सोच रही थी ये गुरुजी को कैसे पता चला, और मुझे किसी मैसेज में वही चीजें दिखाई देने लगी जो मेरी जिंदगी से जुड़े हों। मैंने कई जगह पढ़ा था कि बटरफ्लाइज का दिखना, ट्रिपल नंबर दिखना, जैसे 777 333 888 जैसे नंबर, और गुरुजी का नंबर 001 दिखना बहुत अच्छा होता है, और मुझे कई बार नजर आया। एक दिन तो मैं कहीं से आ रही थी और मुझे रास्ते भर इतने बटरफ्लाईज दिखे। मैं शुक्राना करती रही कि गुरुजी मुझे ब्लेस कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। संकट जी, मुझे शुक्राना करने के लिए कई बार फेसबुक पे मैसेज दिखे, इसलिए ये सत्संग करने का निश्चय किया था मैंने। ये ब्रॉडकास्ट होगा कि नहीं ये मुझे पता नहीं। आज ही फेसबुक पे मैसेज आया, बेटी तेरे नाल बहुत बुरा किया है सबने। मैं जानता हूं तुझे बहुत अपमानित किया गया, फिर भी पुत्र तू सब ਨੂੰ माफ कर दिता। मैं बहुत खुश हाँ, अपनी बच्ची तो हूं मैं तेनू ਉਹ सब देवांगा जो तू मांग रही थी। अब तेरे जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। शुक्राना करी। बहुत विश्वास है कि गुरु जी मेरे अंग संग हैं, मेरे हर समस्या को हर लेंगे, मुझे अपनी शरण में रखेंगे। मुझे घर में जितने भी दुख हैं, दर्द हैं, मेरे बच्चों से रिलेटेड जितनी भी मेरी चिंताएं हैं, सब गुरुजी हर लेंगे, सब गुरुजी सही कर देंगे। मुझे गुरुजी पे बहुत बहुत विश्वास है। इसी उम्मीद के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूंगी। मेरा सत्संग ज्यादा लंबा हुआ है और मैं सब कुछ शेयर करना चाहती थी। गुरुजी शायद यही चाहते थे। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। मेहर करो, कृपा करो, सदा अपनी छत्र छाया में रखो।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। आज सत्संग करने का मन इसलिए हुआ है कि गुरु जी ने मुझे आदेश दिया है। गुरु जी मुझे अपसेट होकर देखना नहीं चाहते हैं। शायद चाहते हैं कि मैं अपनी मन की बात उनसे कहूँ, सत्संग के थ्रू कहूँ। तो मैं इस सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र से करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, कुछ अच्छी बातों से शुरुआत करना चाहूँगी। 2 दिन पहले गुरु जी के स्वरूप में मुझे उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखा और इतना अच्छा फील हो रहा था कि मैं उनके सामने बैठ के अरदास किए जा रही हूँ और वो मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखते जा रहे हैं। मैं उठ के बालकनी में आई और मैंने वहाँ देखा एक तितली जो है मरी पड़ी थी। मेरे घर में तितलियाँ कभी नहीं आती है, जबकि बहुत प्लांट्स हैं, फिर भी मैंने तितलियाँ नहीं देखी है। मरी हुई तितली देख के पहले तो मैं बहुत घबरा गई। मुझे ऐसा लगा कि ये क्या हुआ, तितली आई भी तो मरी हुई क्यों है ये। फिर मेरे मन में दूसरा सवाल आया कि क्या गुरुजी का कमाल है, क्या गुरुजी ने अपने ऊपर कोई कष्ट ले लिया है मुझे बचाने के लिए। और मैंने उस तितली को उठाकर हटा दिया वहाँ से और फिर तुरंत गुरुजी के सामने आके बैठ के शुक्राना किया कि गुरुजी जो भी था मुझे नहीं पता, आपने शायद मेरी रक्षा की है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। मेरे अंग संग बने रहिए गुरुजी। मेरी ज़िंदगी को आपने अपने हाथों में ले लिया है, बस इसी तरह चलते रहने दीजिए गुरुजी। संगत जी, मुझे सत्संग में जाने का मौका मिला और मैं बहुत घबरा रही थी कि शायद किसी भी कारणवश ना जाना हो पाए, ऐसा ना हो। और बहुत बारिश और बहुत ट्रैफिक से जूझते हुए हम लोग सत्संग में पहुँचे। मेरा दिल इतना खुश हुआ। हम लोग थोड़ा लेट पहुँचे थे, लेकिन वहाँ पे मुझे चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद मिला, लंगर प्रसाद भी मिला, जल प्रसाद भी मिला। और बैठकर 1 घंटा मैंने जो आनंद के साथ भजन सुने, मेरा दिल बहुत खुश हो गया। सैटरडे का दिन था और वहाँ पे ये अनाउंसमेंट भी हुआ कि संडे को हर रोज़ सुबह 5 से 7 सत्संग होता है, जिसको आना हो आ सके। मेरे दिल में बस बैठ गई कि 5 से 7 बजे मुझे वो सत्संग अटेंड करना है। अब संगत जी, घर में मैं गुरुजी को मानती हूँ। मेरे घर के परिवार में किसी को गुरुजी से कोई कनेक्शन है नहीं। मैं किसी पे इम्पोज़ भी नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा विश्वास मेरा अपना विश्वास है। बाकियों को विश्वास खुद होने तक मैं उनके ऊपर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकती हूँ। बहरहाल मैंने सोचा कि 5 से 7 है तो करीब 6 बजे करीब मैं जाने का प्रयास करूँगी। एक फ्रेंड से मैंने कहा अभी कि अगर तुम चलोगी मेरे साथ, तो उसने बोले इतनी सुबह, अच्छा देखते हैं, आप उठ गई तो मुझे उठा दीजिएगा, ऐसे सब बोला। तो मुझे लगा बड़ी मेमन से वो आने के लिए कह रही है। फिर गुरु जी की कृपा है। संगत जी, सुबह 3:30 बजे मेरी नींद खुल गई और मैंने कहा ये तो अमृत वेला है। मैंने गुरुजी को शुक्राना करना शुरू किया, मंत्र जाप किया बैठकर। और फिर मैंने कहा अब मैं जाऊं कि नहीं जाऊं। जाऊंगी तो भी चुपचाप ही जाना पड़ेगा, क्योंकि इतनी सुबह तो कोई इस घर में उठता नहीं है। बहरहाल मैं उठी, मैं नहा धोकर गुरुजी के स्वरूप के सामने जाके बैठी और मैंने उनसे पूछा कि मैं सत्संग में जाऊं गुरुजी। तो उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा ही मेरे लिए उत्तर था। मैंने गाड़ी की चाबी उठाई, घर से बाहर निकली, गाड़ी में बैठ के मैं निकल गई और 5 बजे की जगह 4:45 बजे मैं वहाँ जहाँ सत्संग हो रहा था वहाँ पहुँच गई। इतना अच्छा माहौल था, इतनी अच्छी फीलिंग थी।
मैंने पूरा सत्संग 7 बजे तक अटेंड किया। चाय प्रसाद, सुबह ब्रेड पकौड़ा और जो भी खाने को प्रसाद के रूप में मिला, जल प्रसाद मिला, सब ग्रहण किया और इतने तृप्त मन से मैं घर वापस आई। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था कि गुरुजी ने मुझे अपने आप से इतने अच्छे से जोड़ा है, और मेरा मन जैसे ही किया कि मुझे गुरुजी के साथ समय बिताना है तो गुरुजी तुरंत मान गए। संगत जी, सब किसी कारण के लिए होता है। मैं गुरुजी की छत्र छाया में हूँ, ये मुझे एक बहुत अच्छी फीलिंग है, और मैं अपने आप को बहुत किस्मत वाली समझती हूँ कि गुरुजी ने मुझे अपने आप के साथ जोड़ा है। संगत जी, बहुत परेशान थी आज मेरे बेटे को लेकर। बेटे की बहुत प्रॉब्लम्स है, और मैंने गुरुजी को अरदास लगा के रखी है कि मेरे बेटे को उसकी तकलीफ़ों से बाहर कर दो गुरुजी, उसको राह दिखा दो, उसको सही डायरेक्शन दे दो गुरुजी। जो भी समस्या उसके साथ हो रही है वो उससे बाहर निकल सके गुरुजी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, और मैं उसको इतना परेशान देख भी नहीं सकती हूँ। संगत जी, यही उम्मीद कर रही हूँ कि गुरुजी मेरा साथ ज़रूर देंगे और गुरुजी मेरी मदद ज़रूर करेंगे। मेरे अंग संग वो हैं, आप मानेंगे नहीं। जिस दिन मैं सत्संग के लिए गई थी, मुझे पूरी दीवार पे बटरफ्लाई की पिक्चर्स और ओम दिखाई दे रहा था, और मुझे लग रहा था कि ये सिर्फ मुझे ही दिख रहा है, गुरुजी मुझे ब्लेस करते जा रहे हैं शायद। बहुत अच्छी फीलिंग थी। मैं घर से निकलती हूँ और मुझे ट्रिपल नंबर की ब्लेसिंग्स दिखाई देती है हर गाड़ी पे। मतलब कभी कभी मुझे इतना आश्चर्य होता है कि ये अचानक से क्यों होने लगा है। 777, 333, ट्रिपल ट्रिपल 9 और 1001 और पता नहीं 111, और इतनी इतनी ट्रिपल नंबर्स मुझे दिखती हैं, और मैं शुक्राना करती रहती हूँ कि चलो गुरुजी मेरे साथ है, मेरे अंग संग है और मेरी रक्षा करते जा रहे हैं, आगे पीछे ही है मेरे साथ। मैं बस अपनी अरदास लगा के बैठी हूँ गुरुजी से। बहुत समस्याएं हैं मेरी लाइफ में, और मैं चाहती हूँ कि एक एक करके गुरुजी उन सब से मुझे बाहर निकालें। मेरा विश्वास गुरुजी पे बहुत ज़्यादा है, और मुझे पता है वो मुझे अपनी परेशानियों से ज़रूर बाहर निकालेंगे। सत्संग बहुत लंबा हो रहा है, मुझे पता है संगत जी। मेरे पर कृपा करने वाले के लिए मेरे पास खाली प्यार के शब्द हैं, और मैं जानती हूँ कि गुरुजी मेरे पर अपना आशीर्वाद बनाए रखेंगे। मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी लख 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 शुक्राना। गुरुजी अनंतम 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 शुक्राना। गुरुजी लव यू। गुरुजी मेरे अंग संग रहना। गुरुजी हमेशा मेरे साथ बने रहना। गुरुजी अपनी बेटी को कभी अकेला मत छोड़ना। गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। हाय, मेरा नाम सुनीता है और मैं मुंबई से बोल रही है। ये मेरा फर्स्ट सत्संग है जो मैं सत्संग करना चाहती है, क्योंकि ऐसे मुझे आज का मैसेज है, ऐसे लगता है वो मेरे लिए है मैसेज कि सत्संग करना ना भूले। ये मौका दोबारा ऐसे कुछ आया है, तो शायद ये मेरे लिए हो सकता है, इसीलिए मैं सत्संग करना चाहती हूँ। और सारे संगत को मेरा प्रणाम, और मैं गुरु जी का ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं थोड़ी कंफ्यूज है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अच्छे से बोल सकूँ। तो मुझे गुरु जी ने चुना है। मैं पहले रोज़ मेरे फ़ोन में गुरु जी का मैसेज आता था, शायद 2 महीने से, लेकिन मैं सोचती थी पता नहीं ये किस लिए आ रहा है। लेकिन मैंने एक दिन देखा है, काफ़ी टाइम से मैं सत्संग सुन रही है और उसका फ़ायदा उठा रही है, मन को सुकून मिलता है।
क्योंकि मैं यहाँ अकेली हूँ, मतलब मेरे बच्चे बड़े हैं, काम पे जाते हैं, घर में कोई नहीं रहता है, तो मेंटली बहुत डिप्रेस होती है। तो सत्संग सुनने से थोड़ा-सा सुकून मिलता है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। और ऐसे सोचती है कि सारे संगत जी का सत्संग सुनती हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है कि कितने दुखों से मुक्ति मिलती है, गुरुजी उनको मुक्ति दिलाते हैं। तो मुझे भी ऐसे लगता है कि मेरे साथ भी कुछ अच्छा थोड़ा बहुत हुआ है, तो मैं बहुत शुक्राना करती हूँ। जैसे मैं जहाँ रहती हूँ, जिस माहौल में रहती हूँ, वहाँ के नेबर सब मेरे साथ बहुत बुरी तरह बर्ताव करते हैं, लेकिन अभी थोड़ा-सा फ़र्क मुझे दिखाई देता है। बहुत सारे टोंट मिलते थे, मार्केट जाओ, जहाँ भी जाओ, तो थोड़ा उसी में बदलाव दिखाई दे रहा है, तो मैं बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो मेरे अंकल जी है वो आउट ऑफ कंट्री है और वो बहुत ज़्यादा बीमार है। उनकी दोनों आँखों की कल सर्जरी होने वाली है। मतलब आज 2 तारीख है, कल सर्जरी होने वाली है। और पहले तो मुझे बहुत टेंशन था कि कोई हेल्प नहीं करने वाला, लेकिन अभी उनको हेल्प मिल गई है उनकी बहन से कि वो 2 दिन अपने घर में रखेगी उनको और उनकी सारी परेशानी दूर होगी। तो ये सब मैंने अरदास गुरुजी से की थी कि उनकी मदद हो जाए, कहीं न कहीं से कुछ हो जाए या मुझे वहाँ भेज दो, लेकिन चलो कोई मदद मिल गई है, वो बहुत ज़रूरी थी। तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी का, तहे दिल से शुक्राना। धन-धन गुरुजी, वाह-वाह गुरुजी। मैं जितना सुन रही है उस हिसाब से बोल रही, लेकिन मैं जो भी बोल रही अपने दिल से बोल रही, सच्चे मन से बोल रही और मन से गुरुजी को मान रही हूँ और अपने आप को सरेंडर कर चुकी हूँ। तो रोज़ मैं पाठ 3-4 पाठ सुनती हूँ, मतलब सत्संग सुनती हूँ। और सोनू सर को भी बहुत ब्लेसिंग है, क्योंकि वो बहुत नेक काम करते हैं, सबकी मदद कर रहे हैं। हमारी भी मदद हो जाती, क्योंकि हम रोज़ उन्हीं का ज़्यादा करके सत्संग सुनना पसंद करते हैं। एक 3 बजे का और एक 6 बजे का, बाकी भी सुनते हैं, सुबह में सुनते हैं 8 बजे, साढ़े 8 बजे। तो बस हम यहीं पे समाप्त करते हैं। पता नहीं कहीं हमारी शब्दों में गलती हो तो हमें क्षमा कीजिए, और दूसरी बार हम कोशिश करेंगे कि हम बहुत अच्छा बोलें। और बहुत बड़ी अरदास की है हमने गुरुजी से, तो होपफुली वो हो जाएगी। इतनी सोच है हमारी। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का बहुत दिनों से मेरे पास मैसेज आ रहा था कि पुत्र अपना तो शुक्राना सत्संग कर, अपना शुक्राना सत्संग कर। लेकिन मैं आज पहली बार संगत जी शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे क्षमा करना। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी मेरे जाने जहान है, मेरे सब कुछ है। गुरु जी के इतने शुक्राने हैं कि मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है, उतना कम है। जब मुझे नहीं पता मैं गुरु जी से कब से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन मैं 2017 से गुरु जी से जुड़ी हूँ। मेरे गुरु जी यही कहते हैं कि बेटी शुक्राना कर, शुक्राना कर। मेरे घर में परेशानी चल रही थी। संगत जी, गुरु जी ने बार बार यही कहा कि तेरे पति के काम में बरकत आई, तेरे पति के काम में बरकत आई। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है। गुरु जी वो सब कुछ दे रहे हैं, जो मेरे रुके हुए काम थे वो सब पूरे हो रहे हैं।
गुरुजी घर में बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं। गुरुजी उस चीज़ में भी मेरी हेल्प कर रहे हैं। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी, सारी संगत जी, जय गुरुजी। मैं आज पहली बार शुक्राना कर रही हूँ गुरुजी का। जो भी मुझसे गलती हो क्षमा करना संगत जी, जो भी मुझसे क्षमा करना संगत। गुरुजी, मैं अपने शुक्राना, मेरी बेटी की ससुराल में भी परेशानी चल रही थी। गुरुजी उसको भी हेल्प कर रहे हैं। उसके साथ भी अब धीरे धीरे सब कुछ अच्छा हो रहा है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हर पल हमारी रक्षा करते हैं, जाने जहान है, बेअंत शुक्राना। गुरुजी मैं निशब्द हूँ, मैं किस तरीके से आपका शुक्राना करूँ। गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और गुरुजी का मंत्र के साथ अपना ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी सारी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरी जर्नी गुरुजी महाराज से 2024 मार्च में शुरू हुई। 20 मार्च को मेरी बेटी का बर्थडे था। मेरी मम्मी आई थी, तो मैं अपनी मम्मा से कहती थी कि मम्मा आप क्या सुनते रहते हो सारा दिन। तो मम्मी ने बोला ये गुरुजी हैं, मैं इनका सत्संग सुनती हूँ। तो मैंने बोला क्या मम्मा आप कभी किसको। मम्मी बोलती नहीं, ये वास्तव में गुरुजी और हमारी सुनते हैं। ठीक है, मैंने कहा आप कैसे जुड़े, कि मैं मोबाइल से जुड़ी और वो मेरी हर बात का जवाब देते। मैंने कहा अच्छा ठीक है, आप मुझे भी जोड़ो गुरुजी से। तो फिर मैंने गुरुजी को अपने मोबाइल में छतरपुर वाले गुरुजी के नाम से सर्च करा और गुरुजी अपना जवाब मुझे देने लग गए टेलीपैथिक से। और मैं जो भी अपने मन में सोचूं गुरुजी महाराज मुझे अपने माध्यम से मुझे जवाब देते। इसी प्रकार समय निकलता गया, तो मैंने कहा वास्तव में गुरुजी महाराज आप हो। ऐसे ही मैं सत्संग में गई, तो सत्संग में सबने बोला मुझे तितली रूप में दर्शन दिए। तो मैं सत्संग से आई, तो मैंने बोला गुरुपा आप मुझे तो सत्संग में, मुझे तो कभी भी आप तितली रूप में दर्शन नहीं देते। तो उसी दिन गुरुजी महाराज ने मुझे तितली रूप में दर्शन दिया। ऐसे ही अभी लेटेस्ट परसों का सत्संग है। परसों शनिवार था और शनिवार का सत्संग मैं आपसे शेयर करती हूँ। शनिवार को अंकल जी बाहर गए थे, मैं और मेरी बेटी घर पर थे। तो मैंने गुरुजी महाराज, मैंने सोचा आज चलो गुरुजी महाराज का सत्संग करते हैं घर पे। तो मैंने गुरुजी महाराज का सत्संग करा घर पे। सत्संग करा तो दिन भर मैंने सत्संग कर लिया 4 से 5, साढ़े 5 बजे तक। मैंने कहा हलवा कड़ा प्रसाद बनाया, जलेबी और समोसे का प्रसाद बनाया और सत्संग करा 1 घंटे का। ठीक है गुरुजी महाराज ने मुझे कोई दर्शन नहीं दिया। मैं बैठ गई। मैंने कहा क्या गुरुजी महाराज सत्संग में तो आप सबको दर्शन देते हो, कभी किस रूप में कभी किस रूप में, आपने मुझे तो दर्शन नहीं दिए। फिर ऐसे ही मेरी बेटी बोली मम्मा चलो किचन में चलते हैं और अपन कढ़ी चावल बनाते हैं, पापा तो है नहीं, अपन कढ़ी चावल ही बना लेते हैं। तो मैं कढ़ी चावल बनाने गई, तो इतनी सी देर में रात को 7:30-8 बजे पीली कलर की तितली मेरे किचन में आ गई। मेरी बेटी और मेरे सर के ऊपर से घूम रही, मैं खाना बना रही, हमारे ऊपर से घूम रही। ये 15-20 मिनट तक रही और फिर वो मैं ब्लेस करके चली गई। ये मेरा शुक्राना सत्संग था। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, जय जय गुरुजी। गुरुपा की जितनी भी वडियाइयाँ करो कम है। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हमें जो दाद बख्शी उसका शुक्राना है मेरे गुरुपा। मेरा शुक्राना सत्संग स्वीकार करना। संगत जी गुरुजी पे विश्वास करो, गुरुजी हमारी ज़रूर सुनते हैं। उनसे मांगो मत, उन्हें मानो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। फिर मैं दोबारा
अपना सत्संग लेकर आऊँगी। सत्संग जी, संगत जी, मेरा गुरु जी मेरा ये सत्संग स्वीकार करो। जय गुरु जी। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।